everyone, this is CA Pragnesh Kanabar, your audit faculty at CA Final and CA Interlevel. And with us, we have today, it would not be wrong to say, all right, one of the most exciting stories of May 26, that is CA Vinit Ravlani, with All India rank 11. उससे भी अच्छा सुनो, audit में 75 out of 100. Okay. After the AFM trauma of May 26, ये कम बैक करना एंड ऑडिट पेपर में जाना एंड 70 प्लस लाना. सो आई अंडरस्टैंड May 26 ऑडिट पेपर इन कंपैरिजन टू May 25 September 25 10-15% वाज रिलेटिवली इजी, बट वो एएफएम का जो ट्रॉमा था उसके बाद इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो विनीत, वेलकम टू द इंटरव्यू. Thank you, sir. Thank you. Now tell me, how was the feeling when you clicked that that result, all India rank 11? Oh no, just take us through that moment. So actually, जब मैं रिजल्ट देखने जा रहा था, तो there was some issue on the website. वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा था. There was some issue with the captcha or something. तो मैंने 3 बार अपना रिजल्ट डाला है. And I was like, please अभी तो हो जाए. And then finally I saw the score, successful. And I was like, घर पे बताया, everyone just got happy. And I was like, देख लेते हैं मेरिट लिस्ट में किधर आया है क्या. तो then I opened and I was like 11 आया है. बहुत So मॉडेस्ट जवाब दे रहे हो आप. देख लेते हैं, देख लेते हैं. yeah, But I because I was understand. Now not also told me expecting. that sir, All India rank 1 का 483, what was that? Something like 499 if I'm not 490. हाँ. mistaken. तो बोलते हैं सर ये टाइम रैंक वो जो डिफरेंस है, तो he was also expecting a rank but not 12. Alright, so वैसा. So what is your score, Vinit? 447. 447. So he's All India rank 12 at 445. You're at 447. भी देखो उसमें भी 2-2 मार्क के गैप आ रहे हैं. नॉर्मली देखने Right. नहीं मिलता है. Hmm. Alright, but May 26 has been a roller coaster ride. Tell me the emotions that your family went through. They were like very happy. Mummy थी घर पे तभी. I think she हाँ, started crying immediately. correct. Dad was outside. He came back home. फिर तब साथ में खुश हुए. हाँ, मेरा बेटा सीए, वो भी रैंकर. So tell me, in inter CA, have you scored a rank? No. So this is the first time that you are feeling this. First Alright, time. ये हमारे दोनों रैंक होल्डर्स, एक्चुअली वी हैव गॉट 8 रैंक होल्डर्स. दोनों रैंक होल्डर्स जिसका मेरा भी इंटरव्यू है, विनीत एंड कुणाल, बोथ ऑफ देम फर्स्ट टाइम रैंक होल्डर्स. कुणाल मिस्ड इंटर सीए by 9 marks. So आप were you near to the rank at inter CA? No. I was very far. मतलब ओ 30 40 भाई, marks. ये तो कमबैक मूवी है पूरा. It's a blockbuster movie. Kunal is going to get more collection than you. It's a good comeback movie. Okay. Now, Vineet, there are few questions that students have asked. And ये वीडियो में हम सिर्फ ऐसे ही कोई टाइम पास वाली बातें नहीं कर रहे हैं. भाई साहब रैंक होल्डर है, 24 घंटे में हमको टाइम दिया है, so we are very thankful for that. एंड हम ये वीडियो के अंदर थोड़ा उनकी जर्नी जानेंगे, that what was the planning done by him, and most importantly audit में कैसे ये 75 टारगेट किया. Because May 26 when you have a first look at it, थोड़ा पेपर relatively easy लगता है, but when you actually start writing it, there were lots of things in that. Okay, that was that kind of a paper. वो mix and match पेपर था थोड़ा. AFM से कैसे कम बैक किया, and most importantly a very hot topic asked by various students, IBS में also he has scored an exemption 65. and IBS I don't know क्या हो चुका है September 25 से कि IBS की पेपर्स थोड़े डिफिकल्ट सेट हो रहे हैं, but he has scored an exemption in that, so we'll be talking about some IBS strategy also. So Vinith, you cleared inter CA in first. I'm just talking about his schedule. So Vinith, you cleared inter CA in May 23, right? Correct. Alright, तो वहां से लेके मुझे बताओ. I'll ask some questions. Let us keep it a very quantified answer so that students understand. आपने फर्स्ट लेक्चर, नंबर 1 लेक्चर देखना स्टार्ट कब से किया? So let us say रिजल्ट आया जुलाई 23 में. When did you start your preparation? Well, this was the first week of September when I started with AFM. Okay. Yeah. You started with AFM. तभी नहीं पता था कि AFM May 26 हिस्ट्री क्रिएट करेगा. So you started with AFM. This was AFM. first week of September 23. Correct. Okay. Can you take me through the journey? तो उसके बाद फिर FR कब लिया आपने? So AFM started in September 23. It ended around March 24. March या April 24 में खत्म हुआ. Okay. Then after that, I had taken physical lectures, मतलब offline लिए थे initially. So we Okay. had SQM का law का one batch went on for 1.5 months. Okay. And after that, I think July के around July या August में we started with FR. Okay. And that जुलाई अगस्त में continued. FR का. Okay. FR. And I think that continued till March or April of last year. March or April 25. Correct. And So उसके by बाद फिर after till 2025
मार्च अप्रैल मतलब हमने भी आई थिंक तभी स्टार्ट किया था मार्च मार्च अप्रैल थर्ड में। मार्च समथिंग आपने स्टार्ट किया था। So till that time, can I say that you were only in Group One and SPOM? आई वाज ओनली इन ग्रुप 1, यस। Okay, that is ये शेड्यूल धीरे धीरे टाइट होने वाला है। आई थिंक ये रिक्वायर्ड 100 16 में खेलने वाला है, होने right? वाला है। After तो that, what happened? DT, IDT and stuff ये कभी खत्म हुआ? How देन what was the schedule? देन इट वाज योर बैच अप टिल मिड ऑफ मे। आई थिंक यू कंप्लीटेड योर बैच इन मिड ऑफ मे, फिर थोड़ा Correct. रिकॉर्डिंग्स बचा था। देन आईडीटी स्टार्टेड, वो चढ़ रहा था। फिर उसके साथ मुझे रियलाइज हुआ एफआर का सिलेबस बच गया है। मुझे जो मार्च में लगा था खत्म हो गया है, वो एक्चुअली बचा था। सो Okay. आई स्टार्टेड वाचिंग रिकॉर्डिंग्स ऑन 2x स्पीड Okay. जो Yeah, करते you थे। have to. Yeah. देन डीटी डीटी स्टार्टेड इन जुलाई, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई के पहले आई वाज डन विद एफआर। देन डीटी एंड आईडीटी वर गोइंग साइमल्टेनियसली। Correct. वीकेंड्स पे आईडीटी एंड वीकडेज पे डीटी था। एंड फाइनली एवरीथिंग वाइंड्स अप ऑन 31st अक्टूबर। एवरीथिंग इज 31st October, you were done with all the lectures. ऑल द लेक्चर्स। And tell me, so when did your study leave start? My office got over on the 15th of September. Okay, After that, I was in 15 GMCS September Arunachal. 25. Yes. Okay. तो टेल मी ये जो स्टडी उसके बाद आई थिंक 10-15 दिन जीएमसीएस कुछ होगा आई थिंक। 1.5 महीना चला था। So by Around 31st October you were done with I was done. Yeah. so tell me so your genuine study leave period started from 1st November if I'm 1st not. November. Correct. Correct. Then before the study leave which subject you were confident कि मैंने इतना कर लिया है मतलब this is done या some chapters of some subject या पूरा का पूरा study leave में effort लिया? At that point, I was only little confident कि अभी DT तो अभी ही किया है। तो I was only confident in DT. बाकी तो AFM को 2 साल हो गया था। I had not touched that subject. Okay. FR was almost 6 months. तो confidence तो और कोई सब्जेक्ट में नहीं था। Only DT was like कि अभी किया है तो थोड़ा fresh है। I've had two contrasting interviews today. So Kunal has told me that he did 6 revisions before the CA final exam. And before study leave began, he was done with all A category chapters of all the subjects. Correct. So he told me that sir, मेरा IQ level इतना high नहीं है, but I used to be very dedicated and hardworking. Alright, ये आए हैं भाई साहब अपने हार्दिक पांड्या, ठीक है? So he is going to score 4s and 6s. Now I think it is going to be exciting to understand November month से कैसे था. I think it's very relatable what he's going through because 90% तो हम सभी हार्दिक पांड्या ही हैं. Alright, that how do we recover at the end and ensure that India World Cup जीते? So tell me, November onwards, can you take me through Vineet? What was your schedule? So first subject I started was AFM रिविजन क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हो गया था। तो आई थिंक 17th नवंबर तक AFM ही चला। Okay. It is actually a 10-12 day subject, but because 17 days लगे हाँ, थे, because it was long back it that was you had very done. long ago. Then after अच्छा, that by it the way, was AFM May 26, what is the score? 73. Oh my God, अरे बाप रे, मैं AFM प्रोफेसर को बुलाओ इधर. I think आप 10 लाख रुपया डिमांड करना इंटरव्यू का है. No, sir, but I think there is I mean, an this is element of awesome. grace marks I know there is an element of grace mark. Still, grace because mark तो मैंने लिखा सबको मिला 70 है का ना. था। सबको मिला है ना. ग्रेस मार्क तो सबको मिला है. ठीक है. So Right, right. relatively percentile is it is good. Okay, tell me. इसके बाद. फिर then next day से I started FR. FR goes up till I think 5th December तक चला था वो हाँ. because it is a long subject. Then फिर मैंने pick up किया DT. Okay. DT up till 23rd of December. Okay. 23rd And of okay, finally fine. IDT. And then it was IDT up till like first week of Jan. Oh, good recovery. So that was your first reading. और उसके बाद audit First चालू week. किया. And रोज 3-3 घंटा ऑडिट करता था मैं वैसा So था। you are that piecemeal approach person. Yes. I had a discussion with Kunal. He is a one shot person. 17 days audit एक साथ किया. एक साथ नहीं हो पाता था नहीं सर मतलब ऑडिट हाँ मतलब बहुत I ज़्यादा। see there are two contrasting interviews that we are having today. I'm enjoying this. है. So three and मैं हमेशा जब प्लानर देता हूँ तो दो ही अप्रोच बताता हूँ. एक piecemeal approach and one shot approach. Mostly I recommend piecemeal approach. Right. So tell me, 3 hours में हो जाता है मतलब how do you feel confident कुछ about it or what happens? देयर इज नो कॉन्फिडेंस आफ्टर यू डू इट। आपको उसके बाद जब आप फिर से बैठोगे सब्जेक्ट के लिए इट विल फील कंप्लीटली न्यू। मतलब Correct, मुझे तो जैन में ये इशू हो गया था कि ऑडिट तो याद ही नहीं आ रहा, मैं पास कैसे करूंगा ऑडिट। correct. दैट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग piecemeal, बट देन यू हैव टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Okay. मैंने So फिर that से ऑडिट स्टार्ट किया कि मैं आई विल सिट 10 days विद ऑडिट नाउ, बट so अगेन इट वाज first you नॉट did a ईजी। piecemeal approach. करेक्ट।
सेकंड रीडिंग ऑफ ऑडिट कैसे गया? मैं जैन में सो आई प्लान कि मैं अभी 10 दिन ऑडिट लेके बैठ जाता हूँ, पूरा फिर से करता हूँ। ओके, बट आई थिंक आई डिड 2 और 3 डेज़ बट इट डिड नॉट वर्क कि ये तो बहुत हेवी हो रहा है। तो देन आई स्टार्टेड एएफएम का सेकंड रिविजन एंड साथ में वापस ऑडिट चढ़ रहा था। करेक्ट। सो दैट कॉन्फिडेंस आल्सो कीप्स गोइंग। करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, एंड ऑडिट को आपने थर्ड टाइम भी रीड किया बिफोर द एग्जाम्स? आई थिंक आई डिड इट 4 टाइम्स बिफोर द फोर एग्जाम्स। टाइम्स, ओके। हाँ, थर्ड टाइम से एवरी देन आई सब्जेक्ट फोर स्टार्टेड टाइम्स और ओनली ऑडिट फोर टाइम्स? एवरी सब्जेक्ट 4 टाइम्स। ओके, एवरी सब्जेक्ट फोर टाइम्स, गुड। ये या कौन सी रेट पे खेल रहे थे आप? व्हाट वाज द स्टडी आवर्स? स्टडी आवर्स अ, कितने टाइम था आपका? आई वुड स्टार्ट एट 8 इन द मॉर्निंग एंड रात को जाता था 1 बजे तक वैसे 1-1:30। ही इज आवर काइंड ऑफ पर्सन। ऑलराइट, सो टेल मी, लाइब्रेरी में जाते थे घर पे, हाउ वाज इट? मैं घर पे ही था। आई हैड कंसंट्रेशन इश्यूज फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो हम्म, मैंने सोचा फिर अभी लाइब्रेरी जाते हैं, बट उधर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो देन आई कंटिन्यूड एट होम ओनली। करेक्ट। ड्यूरिंग दिस होल पीरियड, how important it is to cut off from social media, or everything is manageable? मतलब ये people are overselling the story of cut off, or we can manage things? सो पर्सनली मैंने तो कट ऑफ किया था, मतलब Correct. इंस्टा अकाउंट वाज डिसेबल्ड। Okay. यूट्यूब फ़ोन से हटा दिया था, रिविजन लेक्चर्स मॉम के फ़ोन पे देखता था। Oh, good. बिकॉज़ बिकॉज़ आई एम दैट पर्सन, मैंने देखना चालू किया तो देन आई लूज़ टाइम ओवर देयर। So सो self-realization is also important, correct? सो इफ यू आर समवन हू कैन एब्सटेन कि मतलब मैं 1 घंटा देखूँगा तो मैं 1 ही घंटा देखूँगा, देन चलने दो बिकॉज़ यू नीड समथिंग टू रिफ्रेश योरसेल्फ। बट अगर लग रहा है कि टाइम ड्रेन हो रहा है तो इट्स बेटर टू कट इट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेप ओनली। How do you refresh yourself? I mean, तो things that आई you वुड can वॉच speak in this interview. ऐसा आई how वुड do वॉच मूवीज़, मतलब लंच के आप, टाइम पे, हाँ, डिनर के जैसे टाइम पे। मुझे कुणाल ने बताया 20-25 मिनट्स का एक्सरसाइज करता था या समथिंग लाइक हुँ। दैट। So watching movies, is that something that can refresh you? या सो आई Or यूज्ड टू वॉच ओल्ड मूवीज़, नॉट नई वाली मूवीज़ नहीं, जो ओल्ड देखी-देखी मूवीज़ है, आई वुड correct, रीवॉच देम। तो वो correct, आधा घंटा लंच में, आधा घंटा डिनर के टाइम पे वो रिफ्रेश correct. हो जाता है उससे। हाँ, हाँ, हाँ। मेरी भी फेवरेट है मूवी आफ्टर मैरिज, सोनू की टीटू की स्वीटी। So अच्छा, इसके बाद टेल मी, टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस सब सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है या यू कुछ रिप्लाई सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है? हाउ इज इट? Ideally, you should go for at least 2 or 3 mock tests for each subject. ओके, मतलब then you get the approach of how you want to approach the actual paper। मतलब अगर एएफएम ऐसा आया, तो मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करने वाला हूँ, मैं एमसीक्यू कभी करूँगा, टाइम मैनेजमेंट क्या है। सो आइडियली 2 तो मिनिमम आपको देना ही चाहिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ऑडिट के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा किया था। मैंने ओके, 4 यूनिट टेस्ट दिए थे व्हिच यू प्रोवाइड। I हाँ, gave those करेक्ट, 4 unit tests फॉर and यू, then I gave 2 full portion tests because ओके। audit में that was मेरा वो ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा हो गया था, it was affecting other subjects also। कॉन्फिडेंस इशू अगर आता है तो? कॉन्फिडेंस इशू था, कुछ याद ही नहीं आता था। आई थिंक मेरे को मार्च अप्रैल में ऐसा हुआ कि हाँ, अभी ऑडिट याद आ रहा है। उसके पहले तो इट वाज़ ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम। देखो भाई, हमारा इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड है। आई हैव आस्क्ड हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलराइट, एंड वी आर ऑल डिस्कसिंग वेरी ऑनेस्ट थिंग्स। ये फालतू चीजों में हम डिस्कस नहीं करने वाले थे। नो नो प्रज्ञेश सर, ओ माय गॉड, योर लेक्चर्स, वी डिड एवरीथिंग। कुछ नहीं, ऑडिट में डर लगता ही है। ऑलराइट, सो इट हैपेंस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट सब्जेक्ट। So first reading में you go with detailed notes and text content and everything. Then did you develop your own handwritten notes? Because I used to give handwritten notes. So did you develop your own notes, or how is it? सो ऑडिट में ना सर, मुझे लगता था कि टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज आना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Correct, correct. सबको, yeah, keywords तो are very important. तो आई वुड जस्ट हाइलाइट की सेंटेंसेस कि मैं जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगा मैं इतना ही पढ़ूँगा एंड आई वुड जस्ट कीप रीडिंग दैट अगेन एंड अगेन। आई डू नॉट प्रेफर हैंड रिटन नोट्स इतना। वो Correct. टेक्स्ट के साथ आई लाइक बिल्डिंग Oh, मजा फ़ैमिलियरिटी, आता है गिव थोड़ा, हाँ। कॉन्फिडेंस। Yeah, yeah. या And so writing practice apart from the unit test and stuff that you did, और कोई writing practice when you read, or you write along with reading, how it goes? सो जब ऐसा लगता था कि फोकस थोड़ा नहीं बैठ रहा है, देन आई वुड स्टार्ट राइटिंग, बट अदरवाइज़ आई थिंक रीडिंग अगेन एंड अगेन इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन फॉर ऑल। Correct. Along with the test series that you have. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। All right. So now tell me, when you move very close to the exam, जो last month होता है, April month, how do you plan April month? Means what do you do in April month apart from panicking? What else happens? सो पैनिकिंग तो सबसे पहले सबको होता है, ये मुझे भी बहुत हो रहा था। बट अप्रैल में ना आई वाज़ डन विथ 3 रीडिंग्स बिफोर अप्रैल। सो Correct. आई वाज़ लेफ्ट ओनली विथ आईबीएस प्रेप एंड द फाइनल रिविजन। तो मैंने पहले 3-4 दिन शायद आईबीएस को दिया था।
कि ओके। कॉस्टिंग थोड़ा गो आईबीएस में थ्रू हम डिटेल बात करेंगे। आईबीएस आई वांट टू टॉक टू हिम, ही इज गॉट एन एग्जामिशन आईबीएस। ओके, तो आपने 3-4 दिन आईबीएस को दिया। आईबीएस को दिया एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग लाइक 4 5 डेज पर सब्जेक्ट कि ओके। अभी वापस एक लास्ट बार बुक को हाथ लगा रहे 4 दिन देके अच्छे से करते मतलब यूजुअली पीपल डू दैट 1.5 डे का थिंक कि मैं 1.5 डे का प्रैक्टिस करता हूँ बट आई थिंक इट इज बेटर टू टेक 4 डेज स्टडी द होल सब्जेक्ट एक लास्ट बार आप कर लो अच्छे से कर लो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई वाज आल्सो गोइंग टू डू 1.5 डे वाला थिंग ओनली बट देन देयर इज अ सीनियर ऑफ माइन ही वाज योर स्टूडेंट ओनली हाँ, हीथ हाँ। जैन उनको मे में हाँ, रैंक किया 71 मार्क्स ईच जैन। यस 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 हाँ, he तो had उन्होंने सजेस्ट 27 किया if I'm not wrong. करेक्ट 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 तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 4-4 दिन लेके कर लो आपके पास टाइम है 1.5 डे वाला करने का ट्राई मत करो एक लास्ट बार अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ लो सो आई रिवाइज Correct. ऑन द सब्जेक्ट्स अगेन Correct. ऑडिट अप्रैल में 2 बार पढ़ा Oh, good. तो वो सो थोड़ा ऑडिट एक्चुअली 5 बार हुआ करेक्ट। Now take me through the examination schedule. May 20. एफआर ओके डोकेस था, मतलब अच्छा भी था, एफआर वाज थोड़ा मिक्स एंड मैच, रिलेटिवली मैनेजेबल रिलेटिवली मैनेजेबल। How much did you score in FR? आई थिंक आई गॉट 76 था Then tell me, when you went through that AFM paper, how was it? I mean, how do you keep yourself calm when you see such papers? What do you do? honestly I was not calm in that paper Uh, I don't think anyone in that exam anyone? hall was calm in that paper. I think वो examiner ने मेरे को 3 बार ऐसे करते हुए देखा है हाँ, legitimately exam hall में. तो it was a very bad paper मतलब वैसा तो है. Usually what I try to do is 3 strong questions लेता हूँ. Then I do MCQs. Then I take the 2 कि weak पहले 40 questions. खत्म करते हैं। Correct correct ओके, correct. फर्स्ट तो लैप। तो पहले तो कौन सा descriptive question लूँ वो तो समझ ही नहीं रहा है. अगर if there are 3 subparts to that question, I probably only know the one subpart to that question. बाकी 2 राइट। solve ही नहीं हो रहा मुझसे. तो देन आई वाज लाइक कि ठीक है चलो एमसीक्यूज देखते हैं एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं 30 मार्क्स वो सिक्योर कर एमसीक्यूज भी नहीं आ रहे तो अभी किधर से स्टार्ट करूं मुझे तो समझ ही नहीं रहा था एमसीक्यूज आल्सो दे वर क्वाइट ट्रिकी एक क्वेश्चन मैंने 3 बार सॉल्व किया एमसीक्यूज का मुझे 3 बार अलग आंसर आया बिकॉज़ आई वाज पैनिकिंग दैट हार्ड जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा किया सब क्वेश्चन सॉल्व किए देन आई रिमेंबर फर्स्ट 1 आवर में आई वाज ओनली डन विद 20 मार्क्स का पेपर ओनली ओ, 20 मार्क्स देन आई वाज आपने लाइक क्या बोला कि अभी जय माता दी, आई विल जस्ट देन स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड नाउ। आफ्टर द फर्स्ट आवर में ऐसा लग रहा था कि ये पेपर तो गया तो आई वाज लाइक एफआर में एग्जाम्पशन आने वाला है ऐसा लग रहा है ऑडिट में एग्जाम्पशन लेके आ ग्रुप 2 पास कर वर्स्ट केस सिनेरियो एक पेपर वापस देने आ ये सब जाना एग्जामिनेशन हॉल में सोच रहे हो आप। एग्जाम हॉल में हुआ तो दैट So you एक्सेप्टेंस can't हैड control कम the thinking, correct? It करेक्ट happens. करेक्ट करेक्ट आई वाज लाइक ऑडिट में कुछ भी कर एग्जाम्पशन लेके आ आई डोंट वांट टू स्टडी दैट सब्जेक्ट अगेन Hmm. सो दैट सॉर्ट ऑफ दैट थिंग हैड कम इन बट जैसे जैसे करके 70 मार्क्स जितना देखो, अटेम्प्ट ये भी किया अच्छा मोटिवेशन है इसने जो बोला वो। आप देख सकते हो वीडियो कितना अनस्क्रिप्टेड है, ऑडिट के प्रोफेसर के सामने बोल रहे हैं, आई डोंट वांट टू स्टडी दैट सब्जेक्ट अगेन। बट आई दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन दैट यू कैन गेट इन ऑडिट सब्जेक्ट, कि मुझे वापस नहीं पढ़ना तो मैं 5 बार अभी पढ़ लेता हूं। वेरी गुड। So tell me then, AFM मैनेज हुआ, आई मीन एट द एंड, बट व्हाट कुणाल टोल्ड मी, कुणाल ने बोला कि सर मैंने ना 5-6 बार पढ़ाई की थी। अगर ये पेपर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में सोच लिया कि तो सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा। So everyone is going to ride in the same boat. करेक्ट And he said that that feeling made me calm in the paper, that अगर मुझे नहीं आ रहा है तो सबको ही नहीं आ रहा है. Right? So that is something that kept him little calm. But it was difficult to keep calm in that. इट इज डिफिकल्ट टू कीप काम AFM पेपर में से बाहर आते हो, then to come up with such a performance in audit subject. So how do you just control all delete that? Because I think humanly it's not possible to just forget what has happened. So how much time it took for you in the last 1.5 days to audit to come back to audit subject? सो सच ही बोलूँ तो ये एक्सेप्टेंस वाला सच में आ गया था कि ऑडिट में ये एएफएम तो शायद गया ही अनलेस ये लोग ग्रेस मार्क्स देंगे तो आई थिंक मेरा तो गया है एएफएम तो दैट एक्सेप्टेंस हैड कम इन कि अभी ऑडिट में तो एग्जाम्शन लाना पड़ेगा वरना ऑडिट वापस पढ़ना So पड़ेगा you thought दैट वाज माय फियर ऑडिट फिर से नहीं पढ़ना है I क्यों love पढ़ना it. So you thought that कि एएफएम में तो गया। अब क्या है हुआ क्या ना, उस मैंने ना उस टाइम ऑडियो नोट भी डाला था टेलीग्राम पे सब जगह। फिर जैन में भी ये हुआ था, जैन 26 में, नॉट लाइक मई 26 बट हुआ था ये। सेम पैटर्न फॉलो होता। सो द आई लाइक हिज थिंकिंग कि एएफएम तो गया ही है, तो ऑडिट इजी आएगा एंड लेट अस टारगेट एग्जाम्पशन इन दैट। कितने बच्चों को एग्जाम्पशन ऑडिट में पता है? नॉट बिकॉज़ इट वाज वेरी इजी, बट एटलीस्ट जिन्होंने ये मेंटालिटी रखा ना, they went through. So next day what happened in examination hall, क्या हुआ? आए थे सब ऑडिट पेपर लिखने या it was an absenteeism? नहीं नहीं आई थिंक लोग आए थे ऐसा नहीं हुआ था कि एएफएम के बाद नहीं आए वैसा Very तो happy. नहीं हुआ Finance year students are still minded एकदम।
अच्छा, लास्ट 2 डेज ऑडिट का कैसे स्पेंड किया? I started with professional ethics, मतलब 7 बजे 7 PM after the ASM paper, I started with professional ethics. I think वो रात को 12 बजे तक चला था। पहले 20 मार्क्स सिक्योर करते हैं करके। 20 मार्क्स सिक्योर किया, फिर आई थिंक आई डिड एसए 250 एंड एसक्यूसी 1 उसी दिन रात को, एंड फिर सोया। ओके, देन नेक्स्ट डे सो मॉर्निंग, दैट डे यू रिकवर्ड वेल, मतलब या इतना खत्म कर दो, नेक्स्ट डे का प्रेशर कम रहेगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट डे देन अगेन आई स्टार्टेड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 घंटा सोने के बाद, कि अभी चलो एसेज थोड़े ड्रॉप करना स्टार्ट कर दे। ऐसे से थका तो देन आई मूव टू द चैप्टर्स, एनबीएफसी, देन आई अदर स्कोरिंग एरियाज सच एज वो हमारा ड्यू डिलिजेंस नहीं, वो कौन सा चैप्टर था? आई डिजिटल डिड कॉस्ट, एनबीएफसी। नो एनबीएफसी, नो, डिजिटल ऑडिट, ऑडिट वाज लास्ट डे। ईएसजी, एसडीजी। ESG, SDG, करेक्ट, that is a scoring area, 4 marks, 5 marks आता है। तो करेक्ट, I करेक्ट। complete chapters and essays को combination में करके I took ओके, ऐसे। या सो मेंटेन द टेम्पो दैट डे। करेक्ट, करेक्ट। Then, when you actually come to the paper, first 15 minutes, how do you spend it? यही है कि डिस्क्रिप्टिव में स्ट्रॉन्गेस्ट 3 क्वेश्चंस एंड देन, पर पहला पेपर लुक देख के ऐसा लगा कि हाँ चलो भाई अभी इसमें एग्जामिशन आ सकता है। हाँ, मतलब फर्स्ट लुक पे ना इट सीम्ड कि थोड़ा मैनेजेबल है, करेक्ट, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन जो ट्विस्ट करके आते हैं शायद इतना ट्विस्ट नहीं हुए थे इस करेक्ट, बार। इतना ट्विस्ट नहीं हुआ था। करेक्ट, तो वो थोड़ा सैटिस्फैक्शन था मेंटली कि प्रोफेशनल एथिक्स इज रिलेटिवली सिंपल। जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आया था जो मैंडेटरी आता है उसमें या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ था, तो दैट वाज रिलेटिवली दैट वाज सिंपल। मैनेज, हाँ करेक्ट, तो ऐसा था कि हाँ, चलो ये तो मैनेज हो जाएगा। एक क्लियर करेक्ट, कट क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी हो गया जो छोड़ना है, क्वेश्चन 6, या उसमें 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। करेक्ट। सो इट वाज़ मैनेजेबल कि हाँ, चलो इधर अच्छा तो जा सकता है यहाँ पे, अगर ठीक Like से नहीं। students are requesting that you should order a certified copy. They would like to see, I will do so. Yeah. because I don't think audit में grace marks दिए हैं. Right? So I think whatever is the score is the actual score. हुँ। Second, IBS को लेकर students are very much worried. How to approach this monster IBS? है? ये कैसे इसके साथ डील करें? So can you give us your insights on IBS? I mean, first study कैसे किया? Second क्या? Third क्या? How to deal with this? सो अनफॉर्चुनेटली आईबीएस थोड़ा लक बेस्ड है। वी Correct. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अगर किसी ने लॉ और कॉस्टिंग खाली एक बार देखा है और उसको क्लिक हो गया कि हाँ, ये चैप्टर का ये कांसेप्ट है, ही विल इमीडिएटली फाइंड द आंसर। अगर आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं मिलेगा। Law costing का significance है ना IBS के लिए? देन आई थिंक इट इज़ 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। So that means the subjects are not gone yet. Correct. है मतलब 10-12 मार्क पर सब्जेक्ट आता है, तो वी कांट कंप्लीटली इग्नोर इट। बट वन थिंग वी कैन डू इज़ आप मैराथन्स देखो फॉर दैट हाँ, सब्जेक्ट। हाँ, करेक्ट, गो थ्रू द टेक्स्ट अच्छे से 2 बार देखो कम से कम। आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा कांसेप्ट कौन से चैप्टर के अंदर है, बिकॉज़ देयर आर मेनी ओवरलैपिंग कांसेप्ट्स। आपको लगेगा चैप्टर 1 का है, बट इट्स एक्चुअली देयर इन चैप्टर 5। करेक्ट। एंड फॉर कॉस्टिंग आई थिंक यू शुड, इंडेक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाँ, एबीसी इंडेक्स आता है, कांसेप्ट वाइज़ एबीसी इंडेक्स। So that you should keep with yourself. You should go through oh, that index concept wise first. ABC. Okay. So don't go for chapter wise ABC. Go for concept wise ABC. Concept wise ABC. Yeah, yeah. हर एक चैप्टर के अंदर there are 10 concepts. 4 could Correct. be A category, the other could be C category. So accordingly concept wise ABC कर Oh no सकते no no. ABC is not like वो that is not the marking kind of. ABC हैं। importance वाला नहीं है. तो फिर Alphabetical order वाला index है. मतलब A से जितने concepts है वो एक साथ दिए हैं. ओ अरे ये बोलो This यार, I was not saying कि आप ये बोल रहे हो. So this is how you are thinking कि this is ऐसा how I है. was thinking. And this helps in the exam. मतलब for Oh, example this एक is question. good. This is good. This is good. I thought कि आप you are saying about the important concepts जो No professors no ने no. बात किए हो. There's no important I'm concept. not a very big follower of ABC, but since you are saying, I just said that okay, चलो ये भी कर सकते हैं. ओ A से कितने concepts आते हैं, B से कितने, C से correct, correct. So that helps. Okay. Then IBS में आपने वो 35 जो cases हैं इंस्टीट्यूट के, did you solve those cases anytime? No कैसे किया? no. No, honestly, it is better to practice past year papers starting from May 25। Okay. May 25 के जो मेन एग्जाम पेपर्स है उनको आप प्रैक्टिस करो। आरटीपी एमटीपी अपना अटेम्प्ट का करो, वो देन mock test कीप paper डूइंग कर मेन। सकते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट So at least 10-15 case studies better to practice. आई थिंक मिनिमम 25-30 आपको करके जाना चाहिए। Correct. So and indexing is very important. इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा यू नहीं, नीड टू हैव पर अ गुड आपके पास इंडेक्स। 2 बुक होती है, एक प्रोफेसर की बुक होती है और एक मॉड्यूल होती है. तो इंडेक्सिंग किसका करते हो आप? फॉर लॉ एंड कॉस्टिंग स्पेसिफिकली मैंने मॉड्यूल ही रखा था, एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स मैंने अपना फैकल्टी का ही नोट्स रेफर किया फॉर आईबीएस, करेक्ट. बिकॉज आई हैड नेवर ओपन द मॉड्यूल फॉर दो सब्जेक्ट्स एवर। तो अभी एग्जाम में खोल के तो ज्यादा मतलब है नहीं। Oh, yeah, relevant. I love his preparation style. Acha, tell me,
ऑडिट का कितना इम्पैक्ट है आईबीएस में? ऑडिट आई बिलीव 10 से 12 मार्क्स आता रफली, है हाँ। एंड इज इट एंड मैनेजेबल और इज इट ट्रिकी इट इज रिलेटिवली इजियर देन द मेन ऑडिट पेपर। देन द मेन ऑडिट पेपर? करेक्ट। करेक्ट। सो यू शुड टारगेट, मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ऑडिट का एक मैनेजेबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यू शुड प्रोबेबली ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। अच्छा, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो पहले ग्रुप 2 की तैयारी करते हैं, फिर ग्रुप 1 की तैयारी, एंड दे गिव ग्रुप 2 इन वन अटेम्प्ट एंड ग्रुप 1 इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई हैव लॉट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स, एंड वो लोग हर बार आईबीएस में अटक रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट विदाउट ग्रुप 1 प्रिपरेशन आईबीएस बिकम्स डिफिकल्ट टू क्रैक? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर आपको ग्रुप 1 नहीं आता है टू क्रैक आईबीएस। एंड यू अगर आप नीड सपोज टू। नहीं भी कर रहे हो, ग्रुप 1 का अटेम्प्ट नहीं भी दे रहे हो, एटलीस्ट यू विल हैव टू सॉल्व 35 केस स्टडीज, 40 केस स्टडीज टू अंडरस्टैंड ग्रुप 1 से क्या-क्या आता है। एंड करेक्ट। यू हैव एंड सम नॉलेज ऑफ ग्रुप 1, राइट? यू विल हैव टू गो मोर इन डेप्थ इन ग्रुप 1। आपको बुक्स तो देखनी ही पड़ेगी ग्रुप 1 की, करेक्ट। 3-4 बार देख के आपको जाना ही So पड़ेगा। even if students are going group wise, let us say, it is better to first clear group 1 and then go for group 2. इवन इफ यू डू दैट, देयर इज स्टिल अ 6 मंथ्स गैप बिटवीन बोथ द अटेम्प्ट्स, तो Correct, ग्रुप correct. 1 फिर से देखना ही पड़ेगा आपको। देयर इज वो नो अदर indexing, ऑप्शन। and whenever you're studying any subject at any point of time, always better to maintain index of that. इफ यू हैव अ फैकल्टीज बुक, तो उसमें रिलेटिवली बना हुआ ही होता ही है होता है। index, हाँ, हाँ, मॉड्यूल का आपको देखना पड़ेगा एक बार, इफ यू वांट टू रेफर द मॉड्यूल। correct. So Vineet, tell me, you were preparing for rank or not? नो, मतलब फ्रैंकली जो जैन में मेरा हालत था विद स्टडीज, वो ऐसा था कि पास होने वाला है या नहीं। हाँ, फ्रैंकली आप घर पे किसी को भी पूछो, आई वाज इन टच विद अ मेंटर फ्रॉम इवन अनदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, correct. इवन ही नोस कि थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब मेरा सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड इन जैन, स्पेशली बिकॉज़ But ऑफ you ऑडिट। pushed yourself through. या So you always prepared to clear, rank आया तो आया ऐसा. हाँ, मतलब अप्रैल में तो ऐसा था कि अभी पास तो करना ही है, फिर से कोई एग्जाम नहीं देना। But I'm very निकल happy, गया। Vinit, that with this interview, students will feel that even though you've not scored rank at inter-C level, rank किसी के पापा की property नहीं है, correct? It is not something that is pre-booked. Okay, you can work for it, you can get it. Okay, Vinit, what now? What are you thinking in life? अब क्या करना है? जॉब सर सर्च अभी कर तो रहे हो कि कुछ क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हो, कुछ मल्टीपल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी कर रहे थे? आई माइट लुक एट अ सीएफए इन द कमिंग ईयर्स। एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसे खास प्लान्स नहीं है। आई विल स्टार्ट विद जॉब हंटिंग मे बी नेक्स्ट वीक। आई विल वेट फॉर कैंपस। You don't have to hunt the job. Job will come. ओके। एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, अश्योरेंस में इंटरेस्ट है, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू आर इंटरेस्टेड? सो ऑडिट में एज ऑफ इंटरेस्ट है नाउ तो लग तो नहीं रहा है मुझे. ऑडिट में तो नहीं जाना है। ऑडिट एंड टैक्स आई हैव केप्ट असाइड कि अभी के लिए ऑडिट एंड टैक्स में तो नहीं स्ट्रेटेजी, देखना। एफडीडी, समथिंग लाइक दैट. समथिंग लाइक दैट, या। ओके. So Vineet, we are going to arrange a get together soon. I expect you to see over there. ये मुझे श्योर वीडियो सर, इमीडिएट शूट करना था ताकि नवंबर के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, those people can at least understand the aspects. And I would really request Vineet कि आपने जो भी टाइम टेबल फॉलो किया होगा या whatever help you can give to the students. So I think I will. मैंने कुणाल से भी रिक्वेस्ट किया था. I will just copy paste your. Do you have an account in LinkedIn? यस सर, आई डू। तो मैं लिंक्डइन का आपका अकाउंट मेरी टीम से बुलवा के उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन. So विल डू if students give our reference to Audit Academy and or a CA background student, please help that student with in श्योर सर, whatever way you can. I think most of the students will relate with you and Kunal, not scoring rank at inter and scoring a rank at final, proving it that it is possible, even though with a little bit of vulnerabilities, it is still possible. Correct? तो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है. दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा. And I'm really expecting you to meet soon. And Vineet, congratulations one more time for this to you and your entire family. You are making, थैंक यू सर। you are making rank sound very simple, but trust me, I know how much you have worked for that. Correct? And सारी चीजों से कट ऑफ करना आज के दुनिया में, alright, जब डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह सब सिर पे है, and to go for that, it is hats off, great efforts. थैंक यू सर, थैंक यू।